উত্তৰ প্ৰদেশত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে নিৰ্বাচনী হিংসা। এইবাৰ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক গুলিয়ালে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰুতত। ভয়ংকৰ খবৰ লৈ আহিছো। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিলৈ গুলি নিক্ষেপ। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক ধাৰাসাৰ গুলি বৰ্ষণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক মিৰাটত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। মিৰাটত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গালৈ গুলিয়ালে দুৰ্বৃত্তই। ওৱেইছিৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি চাৰি যায় গুলি দুৰ্বৃত্তৰ। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰি উভতাৰ পথত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল আসাদুদ্দিন ওৱেইছি। পথত থকা টোল গেটত কৰা হয় তেওঁক আক্ৰমণ। তেওঁৰ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰা হয়। তেওঁৰ গাড়ীলৈ চাৰি যায় গুলি নিক্ষেপ কৰে দুৰ্বৃত্তই। দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা সাংসদগৰাকীৰ। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিলৈ ধাৰাসাৰ গুলি বৰ্ষণ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। AIMIMৰ অধ্যক্ষক গুলিওৱা হৈছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ বাহনলৈ গুলিওৱা হৈছে। চাৰি যায় গুলি নিক্ষেপ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰি দিল্লীলৈ উভতাৰ পথত এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ বাহনলৈ গুলি আহিছে। এই ভিজুৱেল আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে। তেওঁৰ বাহনলৈ গুলি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু সেই ফটো এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈছে। কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ীলৈ দুৰ্বৃত্তই গুলি নিক্ষেপ কৰিছিল। চাৰি যায় গুলি নিক্ষেপ কৰিছিল। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক হত্যা কৰিবৰ বাবে কোনো দুৰ্বৃত্তই উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজপথত চাৰি যায়কৈ গুলি নিক্ষেপ কৰে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ীত সেই প্ৰমাণ এতিয়াও স্পষ্ট হৈ আছে। আমি দেখুৱাই আছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মিৰাটৰ এটা টোল গেটত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰি দিল্লীলৈ উভতাৰ পথত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিলৈ গুলি নিক্ষেপ কৰে দুৰ্বৃত্তই। চাৰি যায় গুলি নিক্ষেপ কৰে দুৰ্বৃত্তই আৰু সেই ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে। আমাৰ ওচৰত সেই ভিডিঅ' আছে। টোল গেটত কি এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পিছতেই এই ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক গুলিওৱাৰ পিছত বা আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ীলৈ গুলিওৱাৰ পিছত কি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এটা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ীলৈ গুলিওৱা হৈছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গালৈ চাৰি যায়কৈ গুলি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, কিন্তু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। এই টোল গেটৰ সন্মুখতে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক গুলিওৱা হৈছিল। আমি দেখুৱাই আছো উত্তৰ প্ৰদেশত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি এদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ নেতা কানহায়া কুমাৰৰ গালৈ চিয়াহীৰ লগত কেমিকেল মিহলি কৰি দলিয়াইছিল দুৰ্বৃত্তই। বহুজনে চিয়াহীৰ লগত এচিড মিহলি কৰি কানহায়া কুমাৰৰ গালৈ দলিওৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিকো হত্যা কৰিবৰ বাবে একাংশই চেষ্টা চলাইছে। আমি দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে, শুনাই লৈছো। हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुआ के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है,
वहां पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, खैरियत से। ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये सब क्या दर्शाता है? हाँ, अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन हमारा আমি আপোনালোকক জনাই আছো আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ গাড়ীত আক্ৰমণ। আসাদুদ্দিন ওৱেচিলৈ 4 জাই গুলি নিক্ষেপ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু ইতিমধ্যে সেই বন্দুকটো বা সেই পিস্তলটো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে হাপুত পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন ব্যক্তিক, নাম হৈছে শচীন। বদলাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নয়ডাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নয়ডাৰ বদলাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শচীন নামৰ এজন ব্যক্তিক, যিজন ব্যক্তি আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ এই গুলিয়াগুলি বা আসাদুদ্দিন ওৱেচিক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে আৰক্ষীৰ মন্তব্য আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে। আমি আৰক্ষীৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर, कोई घायल तो नहीं है क्या? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं। सर, वो मोटरसाइकिल में था, 4 व्हीलर में। सर, जो डिटेन क्या उसने अभी तक कोई खुलासा किया है? देखिए, उसमें हम अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर, कोई घायल तो नहीं है क्या? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं। सर, वो मोटरसाइकिल में था, 4 व्हीलर में। सर, जो डिटेन क्या उसने अभी तक कोई खुलासा किया है? देखिए, उसमें हम अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर, कोई घायल तो नहीं है क्या? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक
किसी का कोई घायल हुआ नहीं है। सर वो मोटरसाइकिल में थे, 4 व्हीलर में। सर जो डिटेन किया गया उसने अभी तक कोई खुलासा किया है? देखिए उसमें हम अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। আমি জনাই আছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজপথত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ী লৈ চাৰিজাইকৈ গুলি নিক্ষেপ কৰা হৈছে। চাৰিজাই গুলি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ী লৈ, আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক প্ৰথমপি ৰক্ষা কৰে এই গুলিয়াগুলিৰ পৰা। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক হত্যা কৰিবৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াইছিল। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক মেৰুটত গুলিওৱা হৈছিল। তেওঁ মিৰাটৰ পৰা এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দিল্লীলৈ উভতাৰ পথত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পায়। টোল গেটৰ ওচৰত তেওঁ গুলিওৱা হয়। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নয়ডাৰ পৰা এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনৰ নাম শচীন বুলি জানিব পৰা গৈছে। বদলাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লোকজনক। হাপুত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই লোকজনক, আৰু এই লোকজন এই গুলিয়াগুলিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক গুলিওৱাৰ পিছতে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে দিল্লীত গৈ উপস্থিত হয়, যেহেতু তেওঁ প্ৰথমপি তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু দিল্লীত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁক যেতিয়া সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে, তেওঁ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি দিছিল আমি শুনাই লৈছোঁ। हमने मीडिया अड्डा से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े, और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुआ के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए।
पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है खैरियत से। ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर इलेक्शन से ठीक पहले ये सब होना क्या दर्शाता है? हाँ, इलेक्शन से ठीक अब नहीं मालूम मुझे, अगर ये लोग ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं এতিয়া এই বিষয়টোৱে সমগ্ৰ দেশতে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি 4 জাই গুলি নিক্ষেপ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। মিৰাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মিৰাটত। দিল্লীলৈ উভতাৰ পথত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা দিল্লীলৈ উভতাৰ পথত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ গাড়ীলৈ দুৰ্বৃত্তই 4 জাই গুলি নিক্ষেপ কৰে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজন দুৰ্বৃত্তক বা এই ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁৰ নাম শচীন বুলি জানিব পৰা গৈছে। বদলাপুৰ নয়দাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই লোকজনক। কিন্তু এতিয়াও কোনে কি কাৰণত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক উত্তৰ প্ৰদেশত গুলিয়ালে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আসাদুদ্দিন ওৱেইছি অৱশ্যে সুস্থভাৱে দিল্লী আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁৰ বাহনত গুলি লাগিছে বা তেওঁৰ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিন্তু আসাদুদ্দিন ওৱেইছি সুস্থ সবলভাৱে দিল্লীত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক জনাম বুলি কৈছে, যিহেতু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে গৈছিল বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা হৈছিল আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ উভতাৰ পথত, দিল্লীলৈ উভতাৰ পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী সাংসদক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী হিংসা বৰ্তমান অব্যাহত আছে আৰু কিছুদিন পিছতেই উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰে। আটাইতকৈ বেছি বিধানসভাৰ আসন আছে যিহেতু এই ৰাজ্যখনত, গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে কেৱল আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়েই নহয়, আজিৰ প্ৰায় এদিন পূৰ্বে কানায়া কুমাৰকো আক্ৰমণ কৰা হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশত। কানায়া কুমাৰক চিয়াহী দলিওৱা হৈছিল আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছে যে চিয়াহীৰ লগতে কানায়া কুমাৰক কেমিকেলো দলিওৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ চিয়াহীৰ লগত এচিড মিহলি কৰি কানায়া কুমাৰক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। কানায়া কুমাৰৰ পিছত এইবাৰ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী হিংসা ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। আজি দিনৰ ভাগত আমি প্ৰতিবিম্ব লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে একাংশই প্ৰতিবাদ কৰিছে বা বিজেপিৰ পতাকা বা দলীয় পতাকাক কেনেদৰে একাংশই ভৰিৰে মোহাৰিছে। ঠিক একেটা সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কৰ্মীৰ মাজত মাৰ ধৰ অৰিয়াউৰিৰ ঘটনাও আমি উত্তৰ প্ৰদেশত দেখুৱাই আছোঁ। ঠিক একেটা সময়তে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ দৰে এজন নেতা যাক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহেই চিনি পায়, তেনে এগৰাকী নেতা, তেনে এগৰাকী সাংসদক উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজপথত গুলিওৱা হৈছে। অৱশ্যে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ আহি দিল্লীত উপস্থিত হয়। সাংবাদিকৰ সৈতে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ ওচৰত আৰক্ষীৰো মন্তব্য আছে। আমি কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আপোনালোকক আৰক্ষীৰ মন্তব্য শুনাইছিলোঁ, আকৌ এবাৰ শুনাই লৈছোঁ। हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर कोई घायल तो नहीं है क्या? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है। सर वो मोटरसाइकिल में थे, 4 व्हीलर में? सर जो डिटेन क्या क्या उसने अभी तक कोई खुलासा किया है? देखिए उसमें हम अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर कोई घायल तो नहीं है क्या? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है। सर वो मोटरसाइकिल में थे, 4 व्हीलर में? सर जो डिटेन क्या क्या उसने अभी तक कोई खुलासा किया है? देखिए उसमें हम अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर कोई घायल तो नहीं है क्या? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है। सर वो मोटरसाइकिल में थे, 4 व्हीलर में? सर जो डिटेन क्या क्या उसने अभी तक कोई खुलासा किया है? देखिए उसमें हम अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे।
एक सीधा उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो ইয়াৰ পূৰ্বেও আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল। আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ ঘৰত শিল দলিওৱা হৈছিল। আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল আৰু বহুগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছিল। আসাদুদ্দিন ওৱেচিক বহু সময়ত বহুবাৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। AIMIMৰ নেতা আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ ওপৰত পুনৰ আক্ৰমণ চলিল। আসাদুদ্দিন ওৱেচিক ৰাজপথত গুলিওৱা হৈছে। আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ বাহনলৈ গুলিওৱা হৈছে। 4 জাই গুলি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ বাহনলৈ। অৱশ্যে সুস্থভাৱে আসাদুদ্দিন ওৱেচি দিল্লীত গৈ উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সময়ত তেওঁ কয় যে এই সন্দৰ্ভত নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱাটো দৰকাৰ, যিহেতু তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা উভতাৰ পথত ৰাস্তাতেই তেওঁক যিহেতু আক্ৰমণ কৰা হৈছে, গতিকে এই সন্দৰ্ভত নিৰপেক্ষভাৱে বিচাৰ কৰাটো বা নিৰপেক্ষভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ এজন সাংসদৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়টো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে সকলোৱে বিবেচনা কৰা দৰকাৰ বুলি কয় আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে।